عرس رضوی کے اس پربہار موقع پر ممبر پاک پہ تشریف فرما حضرات سادات اکرام، علماء ذوی الاحتشام، ارباب علم و دانش، اساتذہ جامعۃ الرضا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا سميعا بصيرا، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد سراجا منيرا، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته إلى يوم القيامة كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المعین الکریم۔ سب سے پہلے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ اپنے محسن کرم فرما محافظ سنیت، ہم اہل سنت کی جان پہچان امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس کی پاکیزہ تقریب اور بالخصوص محفل کل میں شریک ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اپنے اس محسن کی تعلیمات کو ہمیشہ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات کھڑے ہیں دائیں بائیں ہیں، میں ان سے عرض کروں گا کہ وہ محفل میں آ کر کے بیٹھ جائیں۔ کچھ دیر میں انشاءاللہ الرحمن ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے مذہب و مسلک کے قائد شہزادہ سرکار تاج شریعت حضرت علامہ مولانا مفتی اسجد رضا خان صاحب قبلہ دامہ ظلہ علینا تشریف لائیں گے، تو ہو سکتا ہے پھر آپ کو بیٹھنے کی جگہ بھی نہ مل پائے۔ ابھی اس موقع کو غنیمت جانیں۔ حضرت علامہ مولانا مفتی گلزار صاحب نے کھڑا تو کیا مگر عنوان نہیں بتایا۔ چلیے یہ ذمہ داری بھی میں خود ہی ادا کر لیتا ہوں، اور شاید ان کا کچھ یہ ہے کہ صاحب عنوان کے بعد بھی اس طرف گفتگو نہیں ہوئی، لیکن انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ جو عنوان ہے اس پر گفتگو کروں۔ صحابیت سیدنا امیر معاویہ اور 14 سالوں کا مسلمان۔ عرض و معروض سے پہلے بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیے، بآواز بلند ذکر بالجہر کیجیے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ بریلی کا احسان ہے، جب بھی کوئی فتنہ اٹھتا ہے اس فتنے کو دبانے کے لیے اور اس کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے ہماری نظر بریلی شریف کی طرف اس لیے جاتی ہے کہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہی اتنا ہے کہ کچھ بچا ہی نہیں ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ پہ خاص فیضان ہے۔ آپ جب مجدد کے بارے میں پڑھیں گے ملا علی قاری کا قول، میں یجدد لہا دینہا کی تفسیر میں انہوں نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا کہ مجدد کا مطلب ہوتا ہے من یبین السنت عن البدع ویکسر العلم ویعز اہلہ ویقمع البدعۃ ویکسر اہلہا۔ فرمایا مجدد جو تجدید کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سنت اور بدعت کو الگ کر دیا کرتا ہے۔ جب حملہ ہوتا ہے تحفظ ناموس رسالت پر، سرکار کی عزت و وقار پر، اگر کوئی آ کے ختم نبوت کے معنی کو بدلتا ہے، تب اعلیٰ حضرت اپنی کتاب المبین ختم النبیین جزاء اللہ ادوا بے ابائی ختم النبوہ لکھ کر صحیح معنی کی ترجمانی کرتے ہیں اور بتاتے ہیں یہ سنت ہے، یہ بدعت ہے،
इसी तरीके से अगर सरकार की अफजलियत पर हमला होता है, वहां भी चीख चीख कर कहता है नबी अफजल नहीं है माअज़ल्लाह। तब आला हजरत किताब लिखते हैं तजल्लुल यकीन बिअन्ना नबियना सय्यदुल मुरसलीन, और बता देते हैं खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। मोहब्बत से जरा बोलिए सुभान अल्लाह। आप इंशाअल्लाह रहमान गुफ्तगू ध्यान से सुनेंगे तो आपको जामे कौसर मिलेगा। आप इस पानी के लिए इतने परेशान ना हो। ये पानी क्या है? ये वही पानी है जिसको शिकस्ते फाश अगर देने वाली जात है तो करबला में इमाम अली मकाम की जात है। इसलिए इतने परेशान ना होइए, इंशाअल्लाह हमें कौसर का जाम लेना है। अर्ज कर रहा था इमाम अहले सुन्नत का कमाल है, जब फितनाए राबसियत अपना सर उठा रहा था, इमाम अहले सुन्नत ने किताब लिख दी रद्दुर रफ्जा। इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हु ने वाज़े तौर पर यह मसला बयान कर दिया। आज के राफजी हो के नीम राफजी हो, इलाज पहले हो चुका है, फितना आज सर उठा रहा है। हालांकि पहले भी फितना था लेकिन इतना सर नहीं उठा रहा था। मगर याद रखना इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने जबरदस्त इलाज दिया है। तुम जाओगे कहां कहां, हर जगह जाओगे, हम तुम्हें हर जगह शिकस्त देते हुए इंशाअल्लाह नजर आएंगे। इसलिए कि आदमी वहां से नाकाम होता है, उस अस्पताल से रिफर किया जाता है जहां इलाज नहीं मिलता है। इमाम अहमद रजा खान की बारगाह में अगर कोई भी फितना पैदा पेश किया जाएगा, इमाम अहमद रजा खान की बारगाह के फैज याफ्ता ये नहीं कहेंगे हम क्या करें, हम तो मजबूर है। हमने कहा मजबूरी आला हजरत ने दी ही नहीं है, बल्कि आला हजरत ने हमें इख्तियार दिया है और कहा है जैसा फितना पैदा हो किताबें लेकर के जाओ और इन सब की कलही खोल दो और दुनिया वालों को बता दो किल के रजा है खंजरे खुखार बरकबार। आदा से कह दो खैर मनाए नशर करे। अल्लाह सलामत रखे। तवज्जो फरमाइएगा, यहां जब आए हो तो ये समझ के जाओ सुन्नियत कहते किसको है, समझना है, ताकि कोई मीठा मीठा दिखाकर कड़वा कड़वा पिलाने की कोशिश ना करे। शहद दिखाए जहर पिलाए ये काम ना हो। तवज्जो फरमाइएगा। और मैं सनद भी अहले बैत से उठाकर ला रहा हूं। अहले मेंबर अगर सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो फरमा रहे हैं, बस अगर अपने हाथ उठा करके तस्दीक फरमाएंगे इंशाअल्लाह मेरा हौसला बढ़ जाएगा। हालांकि मजीद मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, बस दुआएं चाहिए कि जिस बारगाह से मैं जुड़ा हूं ना, उस बारगाह को देखकर मैं कहता हूं उन्होंने बड़ी बारगाहों को कहा था, मैं उनके लिए कहता हूं कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा बोल बाले मेरी सरकारों के। तवज्जो फरमाइएगा, सुन्नियत कहते किसको है? आओ इसको हम खुद समझ रहे हैं उस बारगाह से और उस अहले बैत के पाकीज़ा खानदान से जिन पर हमारी जाने कुर्बान है। हमसे ना कहो कि हम सादात की ताजीम कैसे करें, हम जानते हैं अच्छी तरह ताजीम करना। अगर तुम्हें सीखना है तो हमसे आके सीख लो। आओ मैं बताता हूं, किताब का नाम सुनिएगा इहयाउल बैत बेफज़ाइल अहलिल बैत, लिखने वाले अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती है और रिवायत करने वाले इमाम हसन मुश्तबा है। उन्होंने अपनी किताब में हजरत इमाम हसन मुश्तबा जो हजरत अली के लख्ते जिगर है, इमाम हुसैन के बड़े भाई है, फातिमा तो जहरा के बेटे हैं, मेरे नबी के नवासे हैं, जिनको सरकार ने हदीस में कहा था इल्ला इब्नी हादा सय्यद लअल्लाह अन युस्लिहा बैना फियतैनी अज़ीमतैनी मिनल मुस्लिमीन। लफ्ज़ सय्यद का इस्तेमाल मेरे नबी ने जिसके लिए किया वो इमाम हसन मुश्तबा है। उन्होंने ही फरमाया क़ालन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लिकुल्लि शैइन असास व असासुल इस्लामी हुब्बु अस्हाबिन नबी व हुब्बु अहले बैतिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तवज्जो फरमाइएगा, मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हर चीज की बुनियाद है। स्टेज आपको नजर आ रहा है, अगर इसके पिलर गिर जाए सारे उलमा नीचे आ जाएंगे, खुदा ना करे, ला कद्दर अल्लाह वला समाह अल्लाह तबारक व तआला। लेकिन आपने बुनियाद को
समझ लिया है। इसी तरीके से मेरे नबी ने महसूस चीज के जरिए माकूल चीज को समझाते हुए फरमाया, हर चीज की दो बुनियादें हैं। इस्लाम की पहली बुनियाद है हुब्ब असहाबिल नबी की, सरकार के सारे सहाबा से प्यार करना। दूसरी बुनियाद क्या है? हुब्ब अहली बैतिही, मुस्तफा के सारे घर वालों से प्यार करना। बुलंद आवाज से बोलो, सुन्नियत की दो बुनियादें हैं। पहली बुनियाद क्या है? मुस्तफा के सारे सहाबा से। दूसरी बुनियाद यह है कि मुस्तफा के घर वालों से प्यार करना। अब मैं पहली बुनियाद पर ही गुफ्तगू करने जा रहा हूं, जरा गौर फरमाइएगा। आज के दौर में एक जुमला बोला जाता है, इन बरेलवियों को क्या हो गया, आज तक तो अमीर मुआविया का उर्स नहीं मनाते थे, हमने का उर्स मनाया जाता है। तकवे की बुनियाद पर उर्स मनाया जाता है, परहेजगारी की बुनियाद पर। हमारे यहाँ किसी आलिम दीन का इंतकाल हो जाए, 1 साल के बाद बरसी के मौके पर उर्स मनाते हैं। हमने कहा क्यों मना रहे हो? कहने लगे आलिम थे, मुत्तकी थे, परहेजगार थे। मैंने कहा इनके तकवे पर कुरान की दलील, इनके तकवे पर हदीस मुस्तफा, इनके तकवे पर इजमा, सबकी जबान बंद रहेगी। इसलिए कि वो कहेंगे मा रआहुल मुस्लिमून हसनन फहुवा इंदल्लाहि हसन। सरकार ने फरमाया है जिसको लोग अच्छा समझे वो अल्लाह की बारगाह में अच्छा होता है। हम आला हजरत का उर्स इसलिए मना रहे हैं कि आला हजरत मुत्तकी थे। हमने ताजुश शरिया का उर्स इसलिए मनाया है, आला ताजुश शरिया मुत्तकी थे। हमने कहा इनके तकवे पर ना कुरान की आयत है, ना हदीस मुस्तफा है, ना इजमाए उम्मत है, बल्कि हमारी कौम के लोगों ने उनको मुत्तकी समझा है और उनके तकवे और परहेजगारी पर उनकी सारी जिंदगी अताल है, दलालत कर रही है। अब यह एक जुमला दे रहा हूं, अरे भैया जब किसी के तकवे परहेजगारी को दुनिया का मुसलमान बयान करे तुम उसका उर्स मनाते हो। अमीर मुआविया तो वो है जिनके तकवे पर कुरान गवाही दे रहा है, वाल समहो कलियात तकवा वकानु अहक्का बिहा वअहलहा। कुरान कहता है अल्लाह ने सारे सहाबा के लिए तकवे कलमा तकवा को यानी परहेजगारी को लाजिम कर दिया है। सारे सहाबा मुत्तकी भी थे और उसके हकदार भी थे। आज के दौर में अगर कोई मुत्तकी आलिम इंतकाल करता है उसका उर्स मनाया जाए, इसलिए कि दुनियादार उसके तकवे पर परहेजगारी पर गवाही दे रहे हैं। तो मैं कहता हूं अमीर मुआविया का उर्स क्यों नहीं मनाएंगे? उनके तकवे पर अल्लाह का मुकद्दस कुरान गवाही दे रहा है। मौलाना गुलजार साहब किबला से कहूंगा, करम नवाजी हो, रात से मैं भी मुंतजिर था। इंतजार की घड़ियां करीब होने खत्म होने के करीब थी और हो सकता है कि इंतजार ही खत्म हो जाता, लेकिन यह करम नवाजी हो गई। अब जरा गौर फरमाइएगा, मैं आगे बढ़ता हूं। मेरे नबी अलैहिस्सलाम के दीवानों, आज के दौर में चाहे नाम कैसी भी रख लिए जाए, अभी अल्लामा शकील साहब किबला ने एक नाम लिया था मौलाइयत का, हालांकि वो है क्या, नाम निहाद मौलाइयत है। सच्चे मौलाई तो हम हैं, हमने हजरत मौलाए कायनात को दिल से माना है। यही फिरकाए नाम निहाद फिरकाए मौलाइयत। आज नाम चाहे कितने भी बदल लिए जाए, लेकिन हमको तो हर लिबास में आते हो तुम नजर, धोखा वो खाए तुमको जो पहचानता ना हो। याद रखिएगा, दौरे हाजिर में कोई जमात हक पर नहीं है, अगर है तो अहले सुन्नत वल जमात है। आप कहेंगे दलील क्या है? मैं कहूंगा अल मिलल वल निहल का मुताला कीजिए, अब्दुल करीम सजस्तानी को पढ़िए, उन्होंने हदीस को जिक्र फरमाया। कौन सी हदीस? सतफ्तरिकु उम्मती वाली। उसके बाद सरकार अलैहिस्सलाम का ये कौल भी जिक्र किया। मेरे नबी से पूछा गया मन नाचिया, सरकार कामयाब होने वाली जमात कौन सी है? तब मेरे नबी ने फरमाया अहलुस सुन्नती वल जमा। हम तो रजिस्टर्ड कामयाब है और हमारे नाम को सरकार अलैहिस्सलाम ने पहले ही वाज़े कर दिया है। इसको पहचान के लिए मसलक आला हजरत कहा जाता है। अब आगे बढ़े, मेरे नबी ने हजरत अमीर मुआविया को अपना महरम राज फरमाया है। तथीरुल चिनानी वल लिसान अन सल्बी मुआविया इब्न अबी सुफियान। अल्लामा इब्न हजर हैतमी शाफई मक्की, जिन्होंने अरब की सरजमीन पर शान अमीर मुआविया पे जबरदस्त लिखा है। कभी अस्सवाइल कुल मुहरिका लिखी है, कभी तथीरुल चिनान लिखी है। इसी में एक हदीस तहरीर फरमाई। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया
सुनो सुनो, अरहम उम्मती बि उम्मती अबू बकर, फरमाया मेरी उम्मत में सबसे ज्यादा रहम दिल अगर कोई है तो वो अबू बकर सिद्दीक अकबर है। अहले इल्म की मोहब्बत के साथ तवज्जो, जरा बुलंद आवाज से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अरहम उम्मती बि उम्मती अबू बकर, फरमाया मेरी उम्मत में सबसे ज्यादा रहम दिल अबू बकर है। उसके आगे फरमाया वाक़वाहुम फी दीनिल्लाहि उमर, और दीन में सबसे ज्यादा मजबूत अगर कोई है तो वो उमर है। उसके आगे फरमाया व अशद्दुहुम हयाअन उस्मान, फरमाया मेरी उम्मत में सबसे ज्यादा हया वाला उस्मान है। व अक़दाहुम अली इब्न अबी तालिब, और फरमाया फैसला करने में, मनसबे कज़ा पर फाइज होने में, जजमेंट देने में अगर कोई जात है तो अली की है। आगे फरमाया लिकुल्ले नबिय्यिन हवारी, हर नबी के कुछ करीबी होते हैं, वह हवारियो तलहा तो व जुबैर, फरमाया मेरे हवारी तलहा और जुबैर है। अगला जुमला सुनिएगा, फरमाया वहिसुमा काना साद इब्न अबी वक्कास कान अल हक़्क़ु मअहु, जहां साद इब्न अबी वक्कास चाहते हैं हक भी उनके साथ चला जाता है। वह सईद इब्न ज़ैद अहदुल अशरती मिन अहिब्बाइर रहमान, और फरमाया सईद इब्न ज़ैद जो अशराए मुबश्शरा में है का ये 10 में से एक है, और इनका कमाल ये है ये अल्लाह से मोहब्बत करने वाले हैं। वह अब्दुर्रहमान इब्न औफ बिन तुजारिर रहमान, अब्दुर्रहमान इब्न औफ वो है जिन्होंने अल्लाह से तिजारत की है। और आगे फरमाया वह अबू उबैदा इब्न जर्राही, फरमाया सुनो अमीनुल्लाहि व अमीनु रसूलिही, कहा कि वो अल्लाह के भी रसूल हैं। कौन? अबू उबैदा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमीन है। कौन कौन? अबू उबैदा इब्न जर्राह, और कहा कि वो खुदा के भी अमीन है। उसके आगे मेरे नबी ने जो जुमला इरशाद फरमाया, तारीख 7 जुमला है, सुन्नियों इस उर्स से लेकर के डाला। मेरे नबी फरमाते हैं वह साहिबो सिर्री मुआविया इब्न अबी सुफियान, और मेरे महरम राज का नाम जिसने मेरे राज को सीने में छुपाया है उसको जमाना अमीर माविया कहता है। अगला जुमला फरमाया फमन अहब्बहुम, मैं कहता हूं अरे फिरकाए नाम निहात फिरकाए मौलाइयत, जरा अंधे होकर के किताबों को ना पढ़ो और ये राफजियों की गिरियोसारी को देखकर चीख चिल्ला कर अपने अंदर इस तरह के इमोशनल जुमले पैदा ना करो। हक्कानियत की बोली बोलो, किताबें पढ़ो, तब तुम्हें समझ में आएगा। आज के दौर में अमीर माफिया के खिलाफ भौंकने वाले ये एक भी जन्नती नहीं है, मैं नहीं कहता। इनमें एक भी कामयाब नहीं है, मैं नहीं कहता। सरकार फरमाते हैं फमन अहब्बहुम फकद नजा वमन खालफहुम फकद हलका, फरमाया जो इन सब से मोहब्बत करेगा वही कामयाब होगा, और जो इनसे दुश्मनी करेगा वो हलाक हो जाएगा। इसलिए हलाकत वाले गिरोह में नहीं जाना है, कामयाबी वाले गिरोह में जाना है। और हमें फख्र से कहना है तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। बस 2-4 मिनट चाहता हूं और उसमें इंशाअल्लाह गुफ्तगू को खत्म करने की कोशिश करूंगा। तवज्जो फरमाइएगा, हजरत अली की बात है ना, तो हम हजरत अली से पूछते हैं, अली आप बताओ, अमीर मुआविया के बारे में आपका नाम लेकर के गुमराह किया जा रहा है। किताबें आप उठा सकते हैं, एक तो तथीरुल जिलान भी है, दूसरी किताब तारीखुल खुलफा अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती की। हजरत मौलाए कायनात ने फरमाया था या अय्युहन्नास ला तकरहू इमारत मुआविया फइन्नकुम लौ फक़दतुमूहु लरायतुमुर रूसा तंदुरु अन कवाहिलिहा। सरकार अलैहिस्सलाम के दीवानों, खलीफा राबे हजरत मौलाए कायनात ने कहा था लोगों मुआविया की गवर्नरी को नापसंद मत करना, उससे नफरत मत करना, इसलिए कि अगर तुमने अमीर मुआविया को खो दिया तो समझना इसका रोबो दबदबा बहुत बुलंद वाला है। अगर इसको खो दोगे तो बहुत से सर अपने तनों से जुदा नजर आएंगे। मतलब यह है इनके खोने से बहुत सारे लोगों के दिलों के अंदर जो अमीर मुआविया की हैबत बैठी थी वो सब खत्म हो जाएगी। मैंने कहा ये तो हजरत अली कह रहे हैं। चलते चलते मैं बहुत सारी रिवायतें जहन में है, इमाम गजाली का कौल भी है, सैयदी गौसे पाक का जुमला भी है, अल्लामा यूसुफ इब्न इस्माइल की तसरीह भी है, सादुद्दीन तफ्ताजानी का कौल भी है। लेकिन मैं बात अहले बैत पर ही शुरू करके अहले बैत पर ही खत्म कर रहा हूं। करबला का मंजर किसने देखा था? आए तकरीब
नौजवानी के आलम में मुस्तफा की शहजादियों को लेकर करबला से आने वाली जात का नाम इमाम सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। चलो इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने हजरत अमीर मुआविया के इंतकाल के बाद जब उनसे पूछा गया कैफा तक़ूलु फी मुआविया, आप अमीर मुआविया के बारे में क्या नजरिया रखते हैं? ये कौन है? हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, मेरी आवाज दूर तक जाएगी। हमें जालिमों, जिनसे मोहब्बत की बात करते हो कम से कम उनकी ही मान लो ताकि तुम्हारा अकीदा दुरुस्त हो जाए। आला हजरत ने रद्दुल रफ़्ज़ा में लिखा है, अब्दुल रज़्ज़ाक़ नामी शिया वो ये कहता है मैं अबू बकर को पहला खलीफा इसलिए मानता हूँ कि मैं अली से मोहब्बत करता हूँ और अली ने अबू बकर को खलीफा मान लिया है। अगर मैं नहीं मानता तो अली की मोहब्बत में झूठा हो जाऊंगा। मैं भी कहता हूँ अगर सच्चे हो तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन का कौल मानो। उन्होंने पूछा कैफा तक़ूलु फी मुआविया, अमीर मुआविया के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? आपने कहा मा अक़ूलु फी रजुलिन इख्तस्सहु अल्लाहु तबारक व तआला लिवहयी, फरमाया मैं उस जात के बारे में क्या कहूँ जिसको अल्लाह ने वही किताबत वही के लिए खास फरमाया। सुभान अल्लाह। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन का कौल है। वजअलहु अमीनन फी अर्दी, और फरमाया जिसको अल्लाह ने जमीन का अमीन बनाया था। आला हजरत ने इतिकादुल अहबाब में एक जुमला बड़ा पाकीज़ा नोट फरमाया, कहा कि लोगों सरकार की पैदाइश और आपकी आमद की जो अलामत तौरात में जिक्र की गई थी उसमें जुमला था वह मुल्कुहु बिश्शाम, उनकी बादशाहत मुल्क के शाम में होगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या अमीर हज़रत सरकार सिर्फ मुल्क शाम के बादशाह है? नहीं नहीं, अल्लाह ने तो खुद फरमाया ना, हदीस कुदसी है, जाल तो फिदा अल्लाह का मुल्की मिनल अर्शी इला मा तहतल अर्दीन, ए महबूब अर्श से लेकर फर्श तक सब मैंने तुझे अता कर दिया है। तभी तो आला हजरत ने अकीदा दिया। ऐ क्यों कहूं बेका, आपने कहा मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिम में नहीं मेरा तेरा। आला हजरत कहते हैं दरअसल तौरात में इशारा मुल्क शाम यानी सल्तनत अमीर मुआविया की तरफ था और बताया जा रहा है। आका करीम अलैहिस्सलाम के लख्ते जिगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछा, आपने फरमाया वजअलहु अमीनन फी अर्दी, अल्लाह ने उनको जमीन का अमीन बनाया था। और उसके बाद कहा वरदियहु कातिबन लिनबी की, अल्लाह ने इस बात को पसंद कर लिया था कि ये अमीर मुआविया मेरे नबी के यहाँ कातिब के तौर पर रहे। आगे आप फरमाते हैं सुनो, इन्ना अबा अब्दुर्रहमानी मुआविया काना रजुलन आकिलन हलीमन अमीना, फरमाया आपकी कुन्नियत अबू अब्दुर्रहमान है। कहा अमीर मुआविया अक्लमंद भी थे, बुर्दवार भी थे, अमानतदार भी थे। गफर अल्लाहु तबारक व तआला ले अबी अब्दुर्रहमानी मुआविया व लअनल्लाहु मन यसलबु। इस जुमले को लेकर के डाला, जितने भौंक रहे हैं सब मलऊन कुत्ते हैं, इनको मलऊन बोल रहा हूं मुतलकन, वरना तो आप लानते शख्सी का मसला जानते हैं। मैं मुतलकन बोल रहा हूं। अरे बचो, कहां तक बचोगे? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा अल्लाह अमीर मुआविया की बख्शिश फरमाए, वल्लाहु मैं यसलुबुहु, और जो अमीर मुआविया के खिलाफ भौंकता है उस पर अल्लाह की लानत हो। तो ये लानत का टॉक हमने नहीं दिया है, जिनसे मोहब्बत का दावा तुम कर रहे हो उसी घराने ने तुम्हें मलऊन करार दिया है। हम उनकी बारगाह में मलऊन नहीं है, इसलिए कि हम उनको भी मानते हैं और उनकी भी मानते हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम के लख्ते जिगर, बस जो चार जुमले हैं इसमें उसको खत्म कर रहा हूं। आपने एक जुमला और इरशाद फरमाया, सुनो सुनो, किसी ने सवाल किया काना बैनहु व बैन जद्दी का माकान, आप इतनी तारीफ कर रहे हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन की, आपके दादा जान मौलाए कायनात और अमीर मुआविया के दरमियान तो जंग हुई थी। जुमला देखिएगा, फरमाया काना ज़ालिका फिल किताबी मस्तूरा व काना अम्रुल्लाहि क़दरम मक़दूरा। कहा मियां ये तो नविश्ता अज़ल में लिखा हुआ था और जो तकदीर में लिखा है वो होकर के रहता है। आखिरी पैगाम देख लीजिएगा, आपने क्या तासुरात पेश किए। फरमाया ला तक़ूलू फीही इल्ला खैरा। हमने शरअ कायद में अपने तलबा को पढ़ाया भी है और अपने असातिज़ा से पढ़ा भी है, ला नकुफ़ु अन ज़िक्रि सहाबती इल्ला बिखैर। हम जब भी सहाबा का तस्करा करें भलाई के साथ, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा ला तक़ूलू फीही इल्ला खैरा। जब भी अमीर मुआविया का तस्करा करना भलाई के साथ करना। क्यों?
فرمایا معاویہ تو ذو فضائل جمع، اس لیے کہ امیر معاویہ کو اللہ نے بے شمار خوبیاں عطا فرمائی ہے. اس لیے آپ اس حدیث کو ذہن میں رکھیں. سنیت صحابہ اور اہل بیت دونوں سے پیار کرنے کا نام ہے. جب یہ چیز آپ کو مل جائے گی تو آپ یہ کہتے جاؤ گے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. رسول کریم علیہ السلام کے دیوانوں، میں نے میری زبان سے ایک جملہ نکلا تھا کہ وہ اللہ کے رسول کے بھی رسول وہاں امین تھا، حالانکہ اس کے بعد میں نے بول دیا ہے، اس لیے میں نے وضاحت کر دی کہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح سرکار کے بھی امین ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ کے بھی امین ہے. السلام.